Hello, I am going to discuss about emergency services in the hospital. What is emergency service? Emergency services are given in the hospital. Okay, it is an integral part of a hospital, microcosm of the hospital as a whole, and this emergency services is available in the front door of the hospital. Okay, it is entry of the hospital. Hospital के entry में होता है ये we are given care to the critical patient, those who require critical care. Okay, now we will see the definition of emergency care. Emergency has been defined as a condition determined clinically or considered by patient or his relative as a required urgent medical services, failing which it could result in loss of life or limb. This definition is given by WHO. Okay, now functions of emergency services or emergency ward. In emergency ward, what are the services are provided? Provision of immediate and correct life saving treatment at all time and all situation. Here we are giving immediate care to the patient. ठीक है, यहाँ पे CPR भी दे सकते हैं, immediate drugs भी दे सकते हैं, BLS भी दे सकते हैं, basic life support भी दे सकते हैं. Okay, correction of casualties and inform the center, referral services. If it is required, we will refer the patient from one hospital to another hospital. Capacity and capability to provide effective management during disaster situations. Now we will see the types of emergency. कितने types के होते हैं emergency? एक होता है मेजर इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. इसमें इमरजेंसी हुआ, कोई डिजास्टर में जैसे कोविड है, दैट इज आल्सो पेंडेमिक है, ये भी एक इमरजेंसी सर्विस है. देन बेसिक इमरजेंसी, स्टैंड बाय इमरजेंसी, देन रेफरल इमरजेंसी. दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इमरजेंसी. पहला है मेजर इमरजेंसी, सेकंड इज बेसिक इमरजेंसी, थर्ड इज स्टैंड बाय इमरजेंसी, फोर्थ इज रेफरल इमरजेंसी. नाउ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इमरजेंसी. इमरजेंसी डिपार्टमेंट का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, पेशेंट शुड गेट right treatment in right time, in right place and by right resources. Okay, and here we have to give the objectives to give speed treatment. Okay, and for another speedy recovery, and we have to provide sympathy and we have to provide holistic care to the patient. Then what are the equipments are present in emergency ward or emergency unit? Emergency unit, all the equipments are available like ventilators, defibrillators, monitors, OT facility, X-ray facility, ultrasonography facility, CT scan, pathology lab. All these type and are available. Apart from that, center gas pipeline, plenty of fluids, IV fluids. Okay, crash cart, emergency medicines, IV line, catheter, vital essential medicines, nebulizers, dressing material, plaster, dressing trolley, minor operation theatre equipments, fire fighting equipments. These are the equipments are available in the emergency unit. Okay, इसका लोकेशन कैसा कहाँ होना चाहिए? Where in a hospital where this emergency unit should be there? Emergency unit should be in a ground floor. ये हमेशा it should be located on the ground floor. Okay, and direct access from the main road. It should be direct access from the main road, and there should have separate approach other than OPD. OPD से हट के दूसरा एक space होना चाहिए जहाँ से patient का enter कर सके. Okay, then located adjacent to the OPD and it should be well ventilated, boldly sign posted both day and night. Day-night doctors and nurses should be available. A helipad is required for major trauma center, hilly and unapproachable areas. ये होता है उसका लोकेशन. यहाँ पे इसमें कौन होते हैं? ये जो एक इमरजेंसी सर्विसेज होता है, इसके आसपास क्या क्या होना चाहिए? इसके आसपास होना चाहिए OT, ICU, blood bank, laboratory, OPD, mortuary. Some authority recommend a close relationship with CCU as well. Then radiology and endoscopy. ठीक है, जहाँ एक emergency services से emergency unit होता है, emergency ward होता है, उसके आसपास जो है OT, ICU, blood bank, laboratory, OPD, mortuary, रेडियोलॉजी, एंडोस्कोपी, ये सब डिपार्टमेंट आसपास ही होना चाहिए. ठीक है. नाउ फिजिकल फैसिलिटी. व्हाट आर द फिजिकल फैसिलिटी शुड बी देयर? पेशेंट एरिया शुड बी सेपरेटेड,
Clinical area should be separated and circulation area, then administrative area should be there. Patient area मतलब जहाँ पे सिर्फ पेशेंट ही रहेगा, क्लिनिकल एरिया जहाँ इक्विपमेंट्स वगैरह रखा रहेगा, सर्कुलेटरी एरिया जहाँ सर्कुलेशन नर्सेस सर्विसेज देते हैं, देन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं. पेशेंट एरिया में क्या क्या रहेगा? पेशेंट एरिया में एंट्रेंस शुड बी गुड, है ना, वेल वेंटिलेटेड एरिया शुड बी देयर, वेटिंग एरिया होना चाहिए क्योंकि पेशेंट के अटेंडेंट साथ में होते हैं, दे शुड हैव वेटिंग एरिया, स्नैक्स वगैरह देने के लिए कुछ स्नैक्स बार होना चाहिए, फार्मेसी डिपार्टमेंट पास में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एरिया, ठीक है. देन पुलिस पोस्ट, एम्बुलेंस फैसिलिटी, ट्रॉली बैग, पोर्टल सर्विस, रिसेप्शन, दिस ऑल शुड बी नियर द पेशेंट एरिया. ओके. देन क्लिनिकल एरिया में क्या क्या होना चाहिए? एग्जामिनेशन एरिया, एग्जामिनेशन टेबल, स्टोर एरिया, इन्वेस्टिगेशन एरिया, नर्सेस डेस्क, emergency yard, treatment area, MLC record, doctor's desk, resuscitation facility, OT, dressing room, plaster room, burn ward, they should be near the clinical area. Then circulatory area में क्या क्या होना है? circulatory area में होना चाहिए corridors, ramp, stairs, lift, ट्रॉलीज जिससे कि ये सब पहुंचा सके, ठीक है. तो these are the things should be in the emergency ward. Emergency में the nurses or doctors, those who are working in the emergency ward, they should have well equipped and उनके पास proper knowledge and skill होना चाहिए. They are experienced staff, nurses, ठीक है, and doctors should be PG होना चाहिए और वहाँ पे emergency services provide करनी चाहिए. And every nurse should know how to handle emergency cases, ठीक है. और इस हॉस्पिटल में जो भी वर्क कर रहा है, इमरजेंसी वार्ड में जो वर्क कर रहा है, दे शुड वियर मास्क, ग्लव्स, ठीक है. और जो ट्रॉमा सेंटर है उस पर भी केयर करना चाहिए. ओके, थैंक यू. सेकेंड एरिया इज सर्कुलेटरी एरिया. सर्कुलेटरी एरिया में क्या होता है? दे आर हैविंग कॉरिडोर, ramp, stairs, lift, trolley, these are things in the circulatory area. Then administrative area PRO रहेंगे, नर्सिंग इंचार्ज रहेंगे, जो मैट्रन है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है. देन स्टोर एरिया विल बी देयर. देन एक्रो ऑफिस, HOD कैजुअलिटी, क्लरिकल स्टाफ, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड ऑफिस, ये सब रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में. देन आर्किटेक्चर डिज़ाइन कितना बड़ा होना चाहिए? एक इमरजेंसी वार्ड शुड बी मेजॉरिटी एरिया शुड बी 20 by 20 स्क्वायर फीट एरिया में होना चाहिए एंड मिनिमम इट शुड बी 10 by 10 एरिया में होना चाहिए. इसका कोड डिज़ाइन होना चाहिए, सेंटर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है. ये इट शुड बी वेल इक्विप्ड होना चाहिए. ओके. देन इसमें कोड है, कोड ब्लू. इट इज़ यूज्ड टू अनाउंस एन एमरजेंसी ऑफ सीरियस नेचर. ओके. कोड ब्लू जो है वो कोड ब्लू होता है सीरियस कंडीशन के लिए होता है, लाइक कार्डियक अरेस्ट एंड फॉर द if it is a case of cardiac arrest, the nurse should be know about the CPR, then और या तो CPR टीम होना चाहिए वहाँ पे, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन होना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी देयर इन कोड ब्लू में. कोड ब्लू जो होता है वो एमरजेंसी सर्विसेज के लिए होता है, ठीक है, जो कि कार्डियक केसेस के लिए होता है. देन व्हाट वी हैव टू डू इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट? एज सून एज पेशेंट कम वी हैव टू इन्फॉर्म टू CMO. देन पेशेंट को OPD से होते हुए अंदर एमरजेंसी इसमें ले आएंगे, कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट करेंगे. इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस देन वी विल टॉक टू देयर रिलेटिव्स. उसके रिलेटिव से पूछेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम पेशेंट इज फेसिंग और व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ही इज अराइज्ड, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट देंगे और उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है. और इफ़ इट इज़ ब्रॉड डेड है तभी हम डेथ को डिक्लेयर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस डॉक्टर्स कम एंड उसका डेथ डिक्लेयर नहीं करता है, उसके बाद में हमको उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजना यदि इन केस ऑफ MLC केस है, ठीक है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसकी कमेटी बनी होती है जो कि CMO है, HOD है, एनेस्थेटिस्ट है, सर्जरी वाले हैं, सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ये सबका मिलके एक
टीम बना होता है, ठीक है। सो ये है मेन करके इमरजेंसी। एवरी नर्स, जो भी नर्स होती है, शी शुड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का डेथ रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, फॉलो अप, रेफर रिकॉर्ड, माइनर ओटी, ये सब चीज़ का में जो रिकॉर्ड होता है, दैट रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन, स्पेशली इफ इट इज़ द MLC केस, दैट इज़ अ मेडिकल लीगल केस। Now we'll see the duties of staff in emergency department. किस टाइप के स्टाफ वहाँ पे काम करना चाहिए। फर्स्ट है चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है, ही विल बी द इंचार्ज ऑफ दैट इमरजेंसी वार्ड, ठीक है। देन उसके बाद में और वही जो है उनके अंडर सुपरविजन में जो काम होगा वो चलेगा। देन सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर शुड बी देयर, जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट ऑन कॉल भी हो सकता है, ठीक है। एवरी टाइम स्पेशलिस्ट may not be available, that time on call doctors, that means we can call doctor in case of emergency, है ना, to give their expert guidance. Then sister in charge should be there in that emergency department, and their sister in charge responsibility is to she has to make the she has to prepare the duty roster for the other nursing staff, है ना, मॉर्निंग का, इवनिंग का, नाइट का पूरा ड्यूटी रोस्टर बनाना है। she will store all the essential drugs, IV fluids, इक्विपमेंट सबको तैयार रखना है, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं देखना है, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है कि नहीं, CSSD सिस्टम है कि नहीं, है ना। और उनको टाइम टू टाइम वर्कशॉप, सेमिनार वगैरह शुड बी प्रोवाइडेड, से प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि वो अपडेट रहे नॉलेज से, ठीक है। और नर्सिंग, फुल टाइम नर्सिंग स्टाफ शुड बी देयर एंड ट्राई टू कीप 1:1 पेशेंट रेशो, लेकिन ये नहीं भी हो सकता है। और नर्सिंग स्टाफ को ये भी बताना है कि लास्ट केयर कैसा देना है, दैट इज़ पैकिंग ऑफ डेड बॉडी एंड क्लीनिंग ऑफ डेड बॉडी, ठीक है, ये सब बताना है। देन नर्सिंग अटेंडेंट मीन्स आयास शुड बी देयर, है ना। तो ये आयास का क्या काम रहेगा, दे विल कलेक्ट ऑल द अनस्टेराइल इक्विपमेंट एंड सेंड टू CSSD डिपार्टमेंट, ठीक है। और ट्रांसफ़र पेशेंट को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना, ये सब काम जो होता है। और डेड बॉडी, डेड हो गया पेशेंट, डेड बॉडी टू बी ट्रांसफर टू द मॉर्चुरी, ठीक है। हाउस कीपिंग का काम रहेगा कि एरिया को नीट एंड क्लीन रखना, ठीक है। उसका भी सुपरवाइजर होगा जो कि इनकी ड्यूटी असाइन करेंगे। चेंज द सॉयल लिनन्स, ट्रांसपोर्ट डेड बॉडी टू द मॉर्चुरी, ठीक है। और स्ट्रक्चर बैरियर्स रहेंगे। देन सिक्योरिटी गार्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट यूनिट, सिक्योरिटी गार्ड शुड बी देयर। ये कभी कभी पेरेंट्स पेशेंट के अटेंडेंट जो होते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं, सच कंडीशन सिक्योरिटी गार्ड शुड बी देयर, ठीक है। एम्बुलेंस फैसिलिटी शुड बी देयर, वहाँ पे एम्बुलेंस फैसिलिटी होना चाहिए ट्रांसपोर्ट करने पे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू गेट बेटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फॉर द इंजर्ड और सिक पेशेंट। वी शुड प्रोवाइड इमरजेंसी एम्बुलेंस फैसिलिटी। और एम्बुलेंस फैसिलिटी में जो है उसमें डॉक्टर, फिजिशियन, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस असिस्टेंट, ठीक है। उसमें कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट, ड्रग्स, प्रॉपर पैकिंग स्पेस शुड बी देयर, ठीक है। इवन नाउअडे एयर एम्बुलेंस आर अवेलेबल, ठीक है। उसमें बाई एयर ICU से डायरेक्ट रेफरल हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं, ठीक है। देन these are all about the emergency services which is given in the hospital. Thank you.